Last time we saw sequential search and binary search. Okay. Today we'll be looking at index sequential search and binary search. It has been repeated again. So we'll do it again, that binary search part over here. Okay. So for the time being, what is index sequential search? Readable, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what happens in index sequential search? Everyone must have used reference book from library, or you must have referred to a textbook in school. Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, I sir. have stopped the screen sharing. I just want to first clear the concept, Yes, sir. and then I will start technically. I have stopped it. So that is what my question was. I hope everyone has used textbook or a reference book from the library in school or in college. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Everyone, Yes, sir. Yes, sir. 57 participants are there. "57 participants are there, only 4 to 5 are answering. So rest others 50, more than 50 have not used book anytime in life." Okay, Keshav says yes. Harsh Gowde also says yes. Not to mail me Yes, sir. privately, but you can say everyone. Okay. So everyone has used it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. Now suppose in that book you want to look for some particular topic, and that book is starting from page number 1 to page number 500. Suppose 500 pages का book है, उसमें तुम्हें कोई टॉपिक ढूंढना है, तो तुम कैसे सर्च करते हो उसको? सर Index इंडेक्स में Index. अगर वो बुक में इंडेक्स नहीं रहा तो? सर एक एक पेज पे नंबर्स लिखा रहता है। नहीं, लेकिन इंडेक्स ही नहीं है वहां पर, सीधे डायरेक्टली फिर- चैप्टर नंबर 1 है। तो बुक स्टार्टिंग खोलते से पहले देखते नंबर चैप्टर नंबर 1 है। तो Yes, स्टार्टिंग से रोशन? देख तो एक एक करके पेज देखते हैं। स्टार्टिंग से देखेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग से देखेंगे मतलब ये कौन से टाइप का सर्च हो जाएगा? Linear, sir. Linear search. Linear कौन सा? Linear search. Sequential search. लीनियर सर्च होता है कभी ऐसा? सीक्वेंशियल सर्च। Sequential search. It is a linear search only, but another name or technical name for that is sequential search. तो sequential search में प्रॉब्लम क्या था? टाइम ज्यादा लग रहा था सर। ऑब्वियसली मुझे टॉपिक ढूंढने का है, तो मैं पेज नंबर 1 पलटी करूंगा, पढ़ूंगा उसको, 2 पलटी करूंगा, पढ़ूंगा 3, 4, 5, एंड सपोज एक पेज पढ़ने के लिए मुझे ढूंढने के लिए 10 सेकंड लगता है। एक पेज में वो टॉपिक ढूंढने के लिए 10 सेकंड लग रहा है, तो 500 पेज तक ढूंढने के लिए कितना सेकंड लगेगा फिर? 5,000. 5,000. 5000 seconds. So how many minutes? So 5000 seconds मतलब कितना मिनट हो गया? 80 minutes. More than 80 in fact. तो 830 minutes आएगा, 83 minutes सॉरी। तो 83 minutes मतलब क्या? Almost 1.5 hour to search. Is it feasible? No, sir. अगर तुम कुछ सर्च करते हो और अगर तुम्हें 83 मिनट्स लगता है कंप्यूटर तुम्हें सर्च करके देने के लिए, तो 1.5 घंटा मतलब तुम खाना वाना खा के बाहर राउंड मार के उसको डाइजेस्ट करके भी आ जाओगे, तब तक ये सर्च करते रहेगा। चलेगा क्या ऐसा सॉफ्टवेयर फिर तुम लोगों को? नो सर। No, sir.
यूज करोगे, फिर रिकमेंड करोगे अपने फ्रेंड्स को, अरे सॉफ्टवेयर यूज कर, मस्त टाइम पास है, तू खाना भी ना खा के आ सकता है, लंच टाइम में तू सर्च करी लग और तू खाना वाना खा ले, मस्त में एक पावर नैप मार ले छोटा सा, एक 10-15 मिनट का, सो जा, तब भी सर्च करके देगा तेरे को. विल यू रिकमेंड इट टू एनीवन एल्स? No, sir. No, sir. No. So then what they did? तो वो बुक में उन्होंने एक नया कंसेप्ट डाल दिया जिसका नाम है इंडेक्स करके. अब वो इंडेक्स में वो लोग क्या करते हैं, क्या होता है बेसिकली इंडेक्स में? टॉपिक के सामने उसका पेज नंबर. सीरियल नंबर वाइज दिया रहता है सबको. Okay. I want others to answer also. I don't want to throw you out. And if I remove it now, you won't be able to join. सर So वो kindly सभी make sure that you are. I don't want those common names every time, yaar. I want some other names to be displayed while speaking. Index में होता क्या है? Come on, SYTA, speak up, or else I'll throw you out. तो चैप्टर्स के नाम दे देते हैं, उसके बाद कितना कौन सा पेज से लेके कौन सा पेज तक वो चैप्टर है वो बता रहता है. Okay. Anyone else? Roll number 19, 19. Yes, sir. What is there in index? What do you find in index? सर चैप्टर नेम्स होते हैं, फिर उसके सीरियल नंबर होते हैं, कितने चैप्टर्स है और पेजेस नंबर लिखे देते हैं. तो उससे क्या मदद होता है हम लोग को? उससे क्या फायदा इससे होता है हम हमें लोग पता को? चलता है, हम लोग को चैप्टर्स मतलब पता चलते हैं कौन से हैं और कौन से पेजेस पे. तो कितने इससे मेरा chapters सर्चिंग इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? इजी होगा. पेज नंबर रहेगा तो इजी हो जाएगा सर. यस, पेज नंबर है तो इजी होगा. तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो टॉपिक चाहिए उसके पेज नंबर पे जाते हैं और फिर उस पेज नंबर पे जाके, मतलब ना उसके पहले का देखेंगे ना उसके बाद का देखेंगे, तो वो टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर से लेके 2 पेज नंबर तक जो भी रहेगा, समझो 500 पेज का बुक है, उसमें से मेरा वो जो टॉपिक था 200th पेज पे स्टार्ट हो रहा है और 210th पेज तक है, तो मैं वो सिर्फ 11 पेजेस ही देखूंगा, बाकी 199 तक और 211 से 500 तक मैं नहीं देखूंगा. फिर वो मेरा टॉपिक पढ़ के हो गया. देन दूसरा टॉपिक सर्च किया मैंने, फिर इंडेक्स में गया, देखा वो पेज नंबर 350 पे है, 350 से स्टार्ट हो रहा है, 352 पे खत्म हो रहा है, तो 349 तक और 353 के बाद मैं देखूंगा नहीं. यही होता है ना इंडेक्स में भी, बुक में जब तुम सर्च करते हो तो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और वो पेज नंबर जो है ना, वो कौन से फॉर्मेट में रहते हैं, मतलब रैंडमली किया रहता है, कैसे किया रहता है वो बुक में जब पेज नंबर लिखा रहता है वो? Sorted. Sequentially Sorted sequence. इट इज अ सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. पेज नंबर 350 दिया हुआ है लेकिन 350 पहला पेज निकला तुम्हारा, हुआ है कभी ऐसा? बुक No, खोलते sir. पहला पेज 350 आ गया. No, sir. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा फिर बोलो? तुमने 200 पेज नंबर देखा, 350 पेज नंबर देखा, लेकिन वो रैंडमली अटैच्ड है, रैंडमली इसको ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो वो तो मेरा सीक्वेंशियल से भी तो महंगा गिरेगा, हाँ. क्योंकि 350 पहले पेज पे है, फिर 351 उसके पीछे रहेगा, लेकिन 352 कहीं और रहेगा. So it will be difficult for me to search then. So index sequential search में important क्या है मेरा? Sorted रहना चाहिए वो. अगर sorted रहेगा तो मेरे लिए बहुत easy हो जाएगा उसको सर्च करने के लिए. समझ में आया? Yes, sir. Now everyone read this. Just a moment. एक मिनट.
Yes, read now. In this searching method, first of all, an index file is created that contains some specific group or division of required record when the index is obtained. Then the partial indexing takes less time because it is located in a specific group. When the user makes a request for specific records, it will find that index group first where the specific record is recorded. वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग का एक इंडेक्स टेबल रहता है जहां पर मैं उसका पॉइंटर स्टोर करता हूं, दैट इज पेज नंबर. फिर बाद में अगर मुझे ढूंढना है उसका पेज नंबर देखूंगा, टॉपिक का नाम, पेज नंबर, तो डायरेक्टली आई विल गो टू दैट पेज नंबर एंड get whatever I want. Same thing over here also. दिख रहा है इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एंड एरे. तो ये 40th, 60th, 80th, 100, 120 ये मेरा इंडेक्स 1 टेबल है. 40 के अंदर मैंने ये जो वैल्यू है 40 है, ओके, गो टू दैट इंडेक्स 2, 40 पे जाओ, ओके, रेफर कर रहा है, ये कहीं एरे में कहीं रेफर नहीं कर रहा है. फिर ये 60 है, 60 पे जाओ, ये देखो 40, 60, 80, 100, 120 मतलब जो यूज्ड वैल्यूज है वो यहाँ पे स्टोर करेगा और जो अवेलेबल वैल्यूज है वो यहाँ पे रहेगा. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ से यहाँ तक है ये. तो 40 है, ओके, 40 पे गया, कुछ है यहाँ पे नहीं है. फिर 60 पे गया, 60 से देखा, ओके, 60 किसको पॉइंट कर रहा है, 60 एरे को यहाँ पे, मतलब ये एरे के टेबल में ये 60 यहाँ पर स्टोर है ये. फिर 40 क्यों नहीं है, क्योंकि 40 यहाँ पर है ही नहीं. अगर तुम यहाँ पे एरे के लिस्ट में देखोगे 60, 65, 70, 60 to 100 तक है, तो इसलिए तुम देखो यहाँ पे 60 से लेके 100 तक ही यहाँ पर पॉइंटेड किया हुआ है, 40 और 50 को पॉइंट नहीं किया हुआ है. तो इससे क्या होगा कि मेरे को 40 और 50 का जरूरत नहीं पड़ेगा. 40 ओके, ब्लैंक, आया ही नहीं अभी तक. 60 यस है, 80 है, 100 यस, 120 नहीं है, 120 भी यूज नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे 120 है ही नहीं यहाँ पर. तो सर हम लोग जैसे पर 120 को उन्होंने यहाँ पर बनाया नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम लोग ये क्यों बनाए हैं 40 के लिए ये वाला लाइन, क्योंकि 40 का इंडेक्स 2 में यानी कि सेकेंड इंडेक्स जो है उसके अंदर उसका एग्जिस्टेंस है. तो ये मेरा इंडेक्स 1, तो यहाँ पर 40 है इसलिए यहाँ पर लिखा मैंने. सर तो 60 को यहाँ पे तो यूज है, 50 तो यहाँ पर यूज नहीं किया है, मगर फिर भी यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि 50 मेरा इंडेक्स 2 में उसको स्टोर करना ही है. इन केस यहाँ पर अगर 50 आ जाता है, यहाँ पे कोई ऐड कर देगा 50, तो उसको रेफर करने के लिए कोई तो रहेगा. फिर जैसे ही यहाँ पर 50 ऐड हो जाएगा ये यहाँ पर पॉइंट करेगा. जब यहाँ पे 50 ऐड हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे भी इस इंडेक्स टेबल को भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा, 50 ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 50 ऐड हो गया, ये पॉइंट करेगा यहाँ पे, फिर ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पे 50 के वैल्यू पे. तो ये जो सीक्वेंस रहेगा देखो सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है. तो मेरा इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च वर्क करता है सॉर्टेड बेसिस पे, तो ही मेरा को वो इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, यूजफुल रहेगा, और एल्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज इट. सो दिस इज इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्चिंग का कंसेप्ट. In index sequential search, a sorted index is set aside in addition to the array. दिया यहाँ पे sorted index 40, 60, 80, 100, 120, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सब sorted दिया हुआ है. देखो यहाँ पर each element in the index points to a block of elements in the array or another expanded index. सर जरूरी है क्या 2 इंडेक्स होना ही चाहिए? नहीं है, ये मत रखो. रिमूव दिस, डोंट कीप इट.
सर सिर्फ इतना रखोगे चलेगा, चलेगा। 60 पॉइंट कर रहे हैं, 70 को पॉइंट कर रहे हैं, 80 को पॉइंट कर रहे हैं, 90 को 100 को चलेगा। सर ये मैं रखा ही नहीं, चलेगा ना, वेरी गुड, चलेगा, नो प्रॉब्लम। कंपल्सरी नहीं है कि मेरे को यहाँ पर ये होना ही चाहिए करके, ये 2 इंडेक्स होने ही चाहिए, नहीं, ये मेरा एक्सपांडेड इंडेक्स है, ये नॉर्मल इंडेक्स है, ये एक्सपांडेड इंडेक्स है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेफरेंस बुक रहता है ना, उसमें तो इंडेक्स तो रहता ही है। कभी तुमने लास्ट में कभी रेफर किया बुक को, लास्ट पेज पे यहाँ पे कंटेंट खत्म होने के बाद देखो, वहां पे भी एक अलग तरह का इंडेक्स रहता है। हाँ सर, क्या रहता है वो? समरी रहता ही है, लेकिन उसके बाद देखो ना वहाँ पे ग्लोसरी करके कुछ तो लिखा रहता है, वो ग्लोसरी या तो कुछ तो ऐसा हाँ सर। दूसरा इंडेक्स रहता है, देखो वहाँ पे, यस सर, जहाँ पे तुम्हें वो पर्टिकुलर एक एक टॉपिक का दिया रहता है। ये मेन इंडेक्स में हाईलाइट वाला मेन टॉपिक, लेकिन उसका सब टॉपिक चाहिए तुमको, तो वो देखो लास्ट पेज में ढूंढते हो ना, तो वहां पर इजी पड़ता है हम लोग को। कभी देखा है लास्ट पेज पे रेफरेंस बुक के, वहां पे ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी टॉपिक हैं, ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी टॉपिक हैं, वहां पर विद पेज नंबर दिया रहता है। टॉपिक का नाम कॉमा पेज नंबर, टॉपिक का नाम कॉमा पेज नंबर, टॉपिक का नाम कॉमा पेज नंबर, ऐसा। लेकिन इंडेक्स में ऐसा नहीं दिया, इंडेक्स में चैप्टर वाइज दिया रहेगा, वहां पे चैप्टर वाइज नहीं, वहां पर अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया रहता है। तो वो जो है मेरा लास्ट पेज में जो रहता है ना, वो मेरा एक्सपांडेड इंडेक्स है, जो कि मेरा यहाँ पे ये सिनेरियो में ये वाला ही है, एक्सपांडेड इंडेक्स। ये मेरा बुक का लास्ट पेज है और ये मेरे बुक का फर्स्ट पेज है, यानी कि इंडेक्स ही है। समझ में आया? तो ये जरूरी ऐसा होना सर? नहीं, जरूरी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन कीप, इफ यू डोंट लेट इट बी। खाली ये यूज सिर्फ इंडेक्स 2 रखो। हेलो, आवाज आ रहा है ना? यस यस सर। यस सर। यस सर। ओके, मेरे को कॉल आ गया था बीच में, इसलिए मैंने चेक किया, मुझे लगा आवाज नहीं आ रहा करके। सो इंडेक्स 2 को रखो, चलेगा। सर इंडेक्स 1 रखो, चलेगा क्या? कुछ भी रखो, इट इज एज पर योर कन्वीनियंस। तुम्हारा सर्च इजी होना चाहिए, इसका मेन एम, इसका मेन मोटो वो है। तुम इंडेक्स 1 के रख के डायरेक्टली एरे रखो, इंडेक्स 2 रख के एरे रखो, इंडेक्स 1 2 रख के एरे रखो, चलेगा। It should be easier to identify, it should be easier to find. The index is searched first, then the array, and guides the search in the array. समझ में आया? यहाँ पे क्या दिया है? इंडेक्स इन सर्च इन द फर्स्ट, यहाँ पर ढूंढना उन्हें 40, ओके। फिर ये गया यहाँ पे 40 पे, ओके है, यहाँ पे 40 है इंडेक्स 2 में भी, लेकिन यहाँ पर देखा नहीं है रे, एरे में नहीं है, सो आई डोंट वांट इट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर एरे भी एक से ज्यादा हो सकता है? क्या बोल रहे बेटा? जो एरे है वो भी एक से ज्यादा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, बुक एक ही रहेगा ना इंडेक्स में तो। हाँ सर। ऐसा था क्या? बुक 1 बुक 2, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, मतलब सेकेंड बुक का इंडेक्स भी फर्स्ट बुक में रहेगा, हो सकता है ऐसा? सेकंड बुक का सेकंड में रहेगा ना सर? यस, तो वैसे ही है, एरे एक ही रहेगा, मतलब जो तुम स्टोर कर रहे हो ना वो एक ही रहेगा, इंडेक्स अलग अलग रहेंगे चलेगा, लेकिन जो मेन कंटेंट है जो स्टोर कर रहे हो वो एक ही रहेगा। ओके सर। समझ में आया? सो तुम्हारा इंडेक्स मल्टीपल हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जो एरे है वो एक ही रहेगा। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. एवरीवन? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। ये होगा तुम्हारा इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। एडवांटेजेस पढ़ो, इसका क्या दिया है?
Insertion, deletion in an index table. Read it kindly, everyone. Once done, let me know. Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Reading means not only just reading, but understood it. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. yes, Yes, sir. Then next is binary search. ये हम लोगों ने किया हुआ ही है. ये बाइनरी में किया हुआ है वही है सेम, लेकिन 2 बार था इसलिए बोला कि चलो अगर सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर देखो 2-2 दिया हुआ है. Yes, sir. है बाइनरी Yes, sir. एंड बाइनरी सर्च. सीक्वेंशियल हो गया, बाइनरी हो गया. अभी इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च. और इसका तुम्हें प्रैक्टिकल में प्रोग्राम नहीं है बाइनरी सर्च का. चेक करो. सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट तीनों हो गया हमारा. मर्ज सॉर्ट, सीक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च. दैट मीन्स अपना प्रैक्टिकल नंबर 6 तक हो गया है. इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जो पेंडिंग था वो भी हो गया. टॉवर ऑफ हेनोई भी हो गया. स्टैक, पुश, पॉप, डिस्प्ले एंड एग्जिट वो भी हो गया. सो प्रैक्टिकल नंबर 6 तक अपना हो गया है. रिमेनिंग 7, 8, 9, 10 ये हम लोग का एडवांस का पार्ट है. तो जैसे जैसे थियरी पार्ट होगा वैसे वैसे मैं इसका प्रैक्टिकल भी लेते जाऊंगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्री का स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7 का कैसे करना है. रीड बाइनरी सर्च किया है हम लोगों ने. एवरीवन जस्ट रीड, लेट मी नो वंस यू आर डन विद इट. Once you're done, let me know. Just tell me, sir, scroll down. I will scroll it.
Done. Yes, sir. Yes, sir. Just let me know if you're done with it. Just scroll down. Just let me know. I'll scroll it. याद है कुछ ऐसे किया था? First we'll determine half of the array by using the formula low plus high minus low by 2. किया था ये 4 integer value है 4.5, so 4 is the mid of the array. तो 4 आ गया 0 1 2 3 4 4 आ गया. ओके, जो सर्च करना है वो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे. तो हम लोग सर्च कर रहे थे 31, लेकिन देखा 31 इज ग्रेटर देन 27, तो लेफ्ट का हम लोग इग्नोर कर देंगे. किया था ना ऐसे कुछ तो? Yes, sir. Yes, sir. Now my low will be changed to mid plus 1. That is 27 सर्च किया, वो तो ग्रेटर देन आ गया, तो 27 का लोकेशन था 4 जो कि मिड था. तब मेरा नया लो वैल्यू क्या आ जाएगा? मिड प्लस 1, दैट इज 5. तो 5 प्लस 9 माइनस 0, 5 प्लस 9 14 डिवाइड बाय 2 7. अब 7th पोजीशन पे देखूंगा 35 है. 35 है, ओके. तो मैं 31 सर्च कर रहा हूँ जो कि लोअर है, तो मैं राइट साइड का छोड़ दूंगा, लेफ्ट साइड में आ जाऊंगा. तो मेरा लो वही रहेगा, हाई मेरा चेंज होएगा. हाई का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर मेरा? भी हाई का वैल्यू आ जाएगा मेरा ये, यहाँ पर जो मिड आया, मिड विल बी माई हाई नाउ. The value stored at 7 is not a match, rather it is more than what you're looking for. So the value must be in the lower part from this location. Hence we calculate the mid again. This time it is 5. Because 7, 5. 7 plus 5, 12. So this is 6. और in fact 7 भी नहीं आएगा, ग्रेटर है ना वो, तो 7 को भी छोड़ दो, 6 आएगा. 5 plus 6 11, 11 by 2 5.5, तो 5 ले लिया. तो 5 ले लिया, लोकेशन 5, यस यही तो था जो हम लोग सर्च कर रहे थे. So we compare the value stored at location 5 with our target value. We find that it is a match. So binary search halves the searchable items and thus reduces the count of comparisons to be made to very less numbers. समझ में आया everyone? Yes, sir. Yes, sir. Index sequential search and binary search. बाइनरी सर्च तो हम लोगों ने ये अलग से नाम दिया था इसलिए हमने उसको रिपीट किया, लेकिन ये है तो वही है, बाइनरी करके. I hope everyone is clear with this concept. Index sequential भी समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Just a moment.
आज तुम लोग का एग्जाम है शायद ना? Yes. Yes, sir. कौन सा है? Computer network. Computer network. ओहो, CN. गुड. 12 to 12:30 है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. विजिबल कुछ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसके दो टाइप देखे थे, कौन कौन से? पहला था सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था आपका डायरेक्ट एक्सेस फाइल, और तीसरा है आपका जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपने सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस फाइल का अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया है, तो आप वहां पे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि इस इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट से पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। बाकी इसमें एक एग्जाम्पल है, 2-3 पॉइंट और पढ़ना है, आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है आपका, द मेन ड्रॉबैक ऑफ अ सीक्वेंशियल फाइल इज दैट सर्चिंग ऑपरेशन इज नॉट एफिशिएंट। क्या बोलता है ये कि जो आपका सीक्वेंशियल फाइल है उसका एक मेन ड्रॉबैक क्या है यहाँ पे कि सर्चिंग ऑपरेशन इज नॉट एफिशिएंट, यानी यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन जो रहेगा वो काफी एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसका आगे रीजन दिया हुआ, बिकॉज इन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी की ऑफ एवरी रिकॉर्ड इज कंपेयर्ड विद सर्चिंग की। यानी क्या कि वहां पे जब भी आप रिकॉर्ड को फाइंड आउट करते हो तो जो भी आपका वहां पे हर एक रिकॉर्ड का जो प्राइमरी की रहेगा उसके साथ में आपका जो सर्चिंग की है वो हमेशा कंपेयर करना पड़ता है, तो वहां पे आपका काफी टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है वहां पे, बराबर। तो वही बोला वहां पे कि सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी की ऑफ एवरी रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड का जो प्राइमरी की रहेगा वो कंपेयर किससे होता है, आप जिस की को फाइंड आउट करो, जिस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करो उसके की से, यानी सर्चिंग की से, ठीक है। नाउ टू ऑप्टिमाइज दिस, अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करिए, टू ऑप्टिमाइज दिस ऑपरेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल इज इंट्रोड्यूस। अब वहां पे उस ऑपरेशन को थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया हमने, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। अब ये क्या है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में अपन पढ़ते हैं। पहले में अपन ने क्या पढ़ा, इसका ड्रॉबैक और ये क्यों है ये हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कि एक्चुअल में क्या करता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, एन इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन अ सेपरेट फाइल फॉर स्टोरिंग इंडेक्सेस ऑफ एवरी रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड अलॉन्ग विद द मास्टर फाइल। चलो वापस एक बार रीड करते हैं। इन इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या, अ सेपरेट फाइल फॉर स्टोरिंग इंडेक्सेस। यहां पे आपका क्या होता है, जो भी इंडेक्सेस होते हैं उनके लिए एक अलग से फाइल होती है फॉर एवरी रिकॉर्ड इज मेंटेन अलॉन्ग विद द मास्टर फाइल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। कौन सा, एक तो आपका जो इंडेक्स फाइल रहेगा और दूसरा आपका मास्टर फाइल। इंडेक्स फाइल आपका क्या रहेगा, जहां पे आपको इंडेक्स सारे गिवन रहेंगे आपके रिकॉर्ड्स के, और जो आपका मास्टर फाइल रहेगा वहां पे आपका सारा रिकॉर्ड पूरा सेव रहेगा। अब आपके सामने एक एग्जांपल है, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो आईडी दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, इंडेक्स फाइल है इसके अंदर। तो इंडेक्स फाइल में आपका क्या रहेगा, हमेशा इंडेक्स गिवन है, कौन सा, ये वाले पोजीशन दिए हुए। अब ये आपका ये पूरा एक मास्टर फाइल है। याद रखना मास्टर फाइल के अंदर आपका हमेशा क्या होता है, डेटा या फिर आपका रिकॉर्ड वहां पे सेव रहता है। तो अब यहाँ पे आपके मास्टर फाइल में क्या क्या है, आईडी है, नेम है और सैलरी है, बराबर। अब यहाँ पे आपको देखो आईडी नंबर 20 को कितना है, नेम क्या है एलेक्स, सैलरी कितना है 2000। 40 नंबर आईडी को क्या है, नाम अलाइस, और सैलरी कितना है 4000। आईडी नंबर 40 को नेम क्या है पैम,
और सैलरी है 1000। आईडी नंबर 30 को कितना है क्रे और सैलरी कितना है 3000। ये हो गया मास्टर फाइल। और इंडेक्स फाइल में आपको उसका आईडी गिवन है और पोजीशन नंबर गिवन है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली आईडी नंबर से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, बराबर। तो क्या करोगे यहाँ पे उसके पोजीशन नंबर से आप यहाँ पे क्या करोगे उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करोगे। पोजीशन नंबर क्या होगा यहाँ पे आपका ये इंडेक्स नंबर हो गया। तो अब इंडेक्स नंबर 5 है। अब 5 पे आईडी नंबर कितना है 10 है, बराबर। अब इस 10 का मुझे डेटा चाहिए तो कैसे मिलेगा पोजीशन 5 पे। तो अब आ जाओ मास्टर फाइल पे। तो ये 5 नंबर मेरा आता है इसके ऊपर। तो देखो 5 पोजीशन पे आपका आईडी नंबर क्या है 10। चलो मुझे आईडी नंबर तो मिल गया, लेकिन मुझे इसका डेटा कैसे मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे उस इंडेक्स नंबर को मैं मास्टर फाइल से कनेक्ट करूंगा। तो 5 नंबर पोजीशन पे मैं अगर देखूंगा यहाँ पे लोकेशन पे, तो 5 नंबर पे आईडी नंबर 10 है, नाम है पैम और सैलरी उसका 1000 रुपीज। हुआ क्लियर। आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। पोजीशन नंबर कितना बोला है 1, उसका आईडी नंबर कितना है 20। चलो आ जाओ पोजीशन नंबर 1 के ऊपर। तो आपका आता है आईडी नंबर 20, यस करेक्ट है। तो इसका नाम क्या है यहाँ पे एलेक्स है और सैलरी कितना उसको 2000। तो मिल गया आपको यहाँ पे इसका डेटा पूरा। अब आता है थर्ड वाले पे ना। आपका पोजीशन नंबर क्या है इंडेक्स नंबर कितना है 7, उसका आईडी नंबर कितना है 30। आ जाओ 7 नंबर पे। तो लास्ट में आपका कितना है आईडी नंबर 30 है, करेक्ट है। नेम क्या है उसका क्रे और सैलरी कितना उसका 3000 रुपीज, ये भी करेक्ट। चलो आपको यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिल गया पूरा पूरा। अब आते हैं पोजीशन नंबर 3 के ऊपर। अब थर्ड पोजीशन पे आपका आईडी कितना है 40। चलो देखते हैं थर्ड नंबर पे। यस उसका आईडी 40 यानी हमारा ये क्या है करेक्ट आंसर है। तो इसका अभी पूरा डेटा कैसे मिलेगा 40 नंबर पे आपका नेम है अलाइज और उसकी सैलरी है 4000 रुपीज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये आपको पूरा पूरा डेटा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर से आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सीक्वेंशियल फाइल में क्या था आपका यहाँ पे कि आपका जो फाइल नंबर है वो पूरे सारे प्राइमरी की से हर रिकॉर्ड के प्राइमरी की से वहां पे आपका वो क्या करता है वहां पे कंपैरिजन करता है, जब तक आपको वहां पे वो पर्टिकुलर आपको स्पेसिफिक वहां पे रिकॉर्ड या पोजीशन नंबर वहां पे नहीं मिल जाता है। हुआ क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नो नीड टू स्कैन द एंटायर मेमोरी ब्लॉक ऑफ रिकॉर्ड। वही जो मैंने आपको अभी भी बताया, आपको वहां पे पूरे मेमोरी ब्लॉक को वहां पे स्कैन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पोजीशन नंबर दिया हुआ है और उसके आगे आईडी दी हुई है। अगर पोजीशन नंबर 5 है तो 5 पे आगे चेक कर लो कि अगर आईडी राइट है मतलब अपने को वहां पे उसका डेटा या उसका रिकॉर्ड पूरा पूरा मिल जाएगा। हुआ क्लियर। अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर। नाउ अब इसका एडवांटेज क्या क्या है, 2 एडवांटेज है और 2 उसके डिसएडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या होता है, डिजायर्ड रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस्ड एफिशिएंटली बाय यूजिंग इंडेक्स विच इज मेंटेन इन सेपरेट फाइल। जो अपन ने भी एग्जांपल में देखा कि इंडेक्स फाइल अलग है और मास्टर फाइल अलग है, बराबर। तो इंडेक्स फाइल को यूज करके अपन वहां से मास्टर फाइल से रिकॉर्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका डिजायर्ड रिकॉर्ड रहेगा उसको वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स कैन ऑल्सो बी हैंडल यूजिंग इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। अगर मान लो वहां पे अगर मास्टर फाइल में आपका सारे अगर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स वहां पे सेव है या स्टोर्ड है वहां पे, तो वो भी हैंडल किससे होंगे, हम इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल से वहां पे उसको हम वहां पे रिकॉर्ड्स को वहां पे रिट्रीव कर सकते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो पहला क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 फाइल नीड टू बी मेंटेन। अब वहां पे आपको 2 अलग अलग फाइल वहां पे आपको मेंटेन करनी है। पहला कौन सा था, इंडेक्स फाइल, दूसरा था उसका मास्टर फाइल। तो वही लिखा है, पहला फाइल है आपका मास्टर फाइल, दूसरा है इंडेक्स फाइल, क्योंकि वहां पे आपको 2 फाइल आपको वहां पे मेंटेन करनी पड़ेगी इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल के अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंडेक्स फाइल। अब हम इससे पहले क्या कर रहे थे कि एक ही हमारा मेमोरी अपना ये था, मेमोरी लोकेशन था, उसी में हम क्या कर रहे हैं, फाइल वहां पे रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं और उसी में हम क्या कर रहे हैं, पूरा सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, इंडेक्स फाइल को अलग सेव कर दिया और मास्टर फाइल को अलग सेव कर दिया। तो यहाँ पे मेरी मेमोरी लोकेशन वहां पे ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, ये था कि आपका इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के डालने वाला हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। I hope everyone is clear with this index Yes, sir. sequential. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I have one more video, but I think that this much is enough. I think for you all to clear it. समझ में आया सबको ना, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च क्या होता है वो?
यस सर Yes. Yes, sir. सर है तो फिर दिखा दो ना वीडियो दूसरा क्या बोला बेटा? सर और एक वीडियो बोल रहे ना वो भी दिखाओ ना अच्छा, देखना है। यस सर एक्चुअली वीडियो से ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं वो प्रिफर करता हूँ। search very nicely. Okay, because it is the combination of two searching methods. Okay, so let's see what is by index sequential search. So index sequential searching method makes the use of sequential access method as well as randomized access method. Okay, now sequential searching method and randomized access searching method क्या था, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं. That is linear search starts searching the element sequentially one by one. So it starts 1, 2, 3, 4 up to n. So it is called as the sequential searching method. Then next one is the randomized access method. मतलब क्या, from 1 to n minus 1 इनमें से एक एलिमेंट चूज करो तुम. If you are choosing the element randomly, then it is called as randomized access searching method. Then, but index sequential search method, though it is name is index sequential searching method, it uses both this technique. लेकिन when index sequential search method uses a sequential search method and when it uses randomized access method, that is the key element of this searching method. ठीक है, and it search element according to groups. अब groups कैसे बनते हैं, array क्या होता है, array का division groups में कैसे होता है, all these things depends on the steps. So let's study the steps. So first step is read the search element from the user. So if this is my array of elements and I want to search the element 28 in this array, ठीक है, so let's say my key element is 28. Then क्या कहता है, divide the array into groups according to group size. So I need a group size. So in exam either group size is given to you or you need to choose the group size. So choose the group size efficiently. It is a lengthy video. I will pass it in the classroom or WhatsApp. So just everyone fill the attendance over here. 65 participants are there. I need 61 entries. Your second lecture also, I think, right? Yes sir. Okay. Get ready for second lecture, everyone. And all the best for today's exam. Do well and try, be genuine, sincere to yourself. Don't try to copy also because it is being monitored and recorded. So make sure that you're attempting on your own without copying from anyone. यस सर Okay, chalo. Thank you, Bye bye sir. everyone. Take Thank care. you. Stay home. Thank you, Stay sir. safe. Till we meet next time.